ایک ہے جرم کرنا، ایک ہے جرم کرنے کے بعد ہٹ درمی دکھانا، اس جرم کو قانونی شکل دینا، اور جرم کرنے کے بعد پھر اس جرائم پر شوخیاں مارنا، پھر کوئی شکل نہیں بچتی کہ اللہ کے عذاب کو روکنے والی ہو کوئی. ہم یہ شوخیاں بات جو چیزیں فطرت میں تھی آج آپ دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہماری شادی بیاہوں میں ہوتا ہے، ہماری بہن بیٹیوں میں ہوتا ہے، ہمارے نوجوانوں میں ہے کہ داڑیاں مونڈو، مونچھیں رکھو. اللہ کا پیغمبر فرمائے یہ فطرت ہے، اس کو معاف کرو، اس کو چھوڑو. یہ کسی پیغمبر کی شریعت میں اس میں انقطاع نہیں آیا. یہ کہتا ہے میں منڈاؤں گا. آپ بتائیں اسلام الٹ ہوا کہ نہیں؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القدع، آپ نے فرمایا، آپ نے قد سے منع فرمایا. قد کیا ہے؟ کہ سر کے آدھے بال مونڈ دیے جائیں اور آدھے، کہاں گہرا مطالعہ کیا ہمارے حجام نے، اس نئی نے اس کو ڈیزائن کے طور پر وہ لایا. اس نے آدھا سر مونڈا اس نوجوان کا، آدھا سر چھوڑ دیا، اور معاشرے میں اس نے اس کو شیطان کا مبلغ بنایا اور محمد کا مخالف پہچان کروائی کہ دیکھو میرے نبی نے اس سے منع کیا، میں کھلے عام یہ کرتا ہوں. آدھا سر مونڈا ہے، آدھا بچایا. اللہ کے پیغمبر نے منع کیا. یہ بڑی گہرائی سے نکال کے لایا. یہ بیماری آپ دیکھو اچانک یہ نکلی ہے، اور ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اس نوجوان نے اپنی خلقت کے اندر تبدیلی کو خود بخود اس کا احساس پیدا کر کے ایک قدم اٹھایا ہے. اب ہم رو رہے ہیں کہ قانون بن رہے ہیں. کیا قانون بن رہا ہے؟ جینڈر قانون بن رہا ہے، جنسیت کو تبدیل کرانے کا. آڑ لی جا رہی ہے کس کی؟ وہ جو خلقت میں بیچارے معذور ہیں، جس کو شریعت میں خنثی کہتے ہیں، نہ وہ ہی ہے نہ شی ہے، اس کی خلقت کمزور ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اس کو آڑ بنا کر قانون بنا رہا ہے ہمارا حکمران کہ جو چاہے کسی کمزوری کی وجہ سے دوائی کھا لی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے، تو اپنی خلقت کو وہ آ کر قانونی طور پر تبدیل کرا سکتا ہے. مرد عورت بن سکتی ہے، عورت مرد بن سکتا ہے. اس کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے. مرد عورتیں بن جائیں، عورتیں مرد بن جائیں. اور فیور کس کو دے رہے ہیں؟ وہ جو خلقت میں بیچارے کمزور پیدا ہوئے تھے ان کو فیور. ان کی فیور تو کچھ بھی نہیں، ان کے احکامات تو اسلام نے بیان کیے. یہ خلقت تبدیل کرنے کا سلسلہ اس کو اصل میں رواج دینا چاہتا ہے. کس کو؟ ہم جنس پرستی. مرد عورت بنے، عورت مرد بنے، پھر آپس میں ان کا اختلاط ہو، اور پھر یہ آپس میں ہم جنس پرستی کے ساتھ اپنی خواہشوں کو پورا کریں. معاشرے میں بے حیائی پھیلے، کسی کی پہچان نہ رہے یہ مرد ہے، کسی کی پہچان نہ رہے یہ عورت ہے. کوئی مر جائے تو اس کی وراثت کے حوالے سے ابہام پیدا ہو جائے. مرد بن کے وراثت لے گا، عورت بن کے وراثت لے گا. یہ عورت بن کے، عورت تھی مرد بن کے کہاں جا رہا ہے؟ مردوں میں جا رہا ہے. یاد رکھیں، تھی عورت، مرد بن گئی کاغذات میں، تو کہاں جا سکتی ہے؟ اب مرد لگتا ہے تو مردوں میں جائے. تو جب مردوں میں جائے گا حقیقت میں کیا ہے؟ عورت. اسی طرح مرد عورت بن جائے کاغذات میں، اور جب عورت بن گیا تو عورتوں میں جائے تو اس کو کوئی منع؟ وہ سوئمنگ پول پہ جائے، وہ ہوٹلوں میں جائے، وہ کسی مدرسوں میں جائے. اختلاط کر دو، دیوسیت کو عام کرو. مانا یہ ہے دیوسیت کو، یہ تمیزیں ختم ہو جائیں کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا، یہ مرد ہے یا عورت. یہ قانون اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. حکمران کے پاس سلطہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں باقی ساری حدیں نافذ ہو گئی، سارے جرائم ختم ہو گئے، سارے گناہ ختم ہو گئے، سود ختم ہو گیا، بے حیائی کے اڈے ختم ہو گئے، حدود اللہ نافذ ہو گئی، چوروں کے ہاتھ کاٹے گئے، قاتلوں کو پھانسیاں دے دی گئی. جو قانون اللہ بیان کرتا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم ایسے قانون بنانے چلے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں؟ حقیقت میں یہ پاگل پنی ہے. قوموں میں جب یہ پاگل پنی آتی ہے تو اللہ کے عذاب اس وقت بڑے قریب ہوتے ہیں. یاد رکھیں، یہ پاگل پنی قوم لوط میں آئی تھی. قوم لوط میں آئی تھی. بے حیائی کا عمل اتنا تھا کہ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی. لوط کے پاس اس کے مہمان فرشتوں کی حالت میں جو آئے تھے، مہمان بچے بن کر فرشتے، تو اتنے اندھے ہو گئے تھے، دوارے پھلاک کے دروازے توڑ کے اندر آ رہے تھے. بے حیائی کے عالم میں لوط نے کہا تھا میرے مہمانوں کے بارے مجھے رسوا نہ کرو. کیا کر رہے ہو؟ شرم کرو. زمانے میں تمہارے جیسا بے حیائی کا کام کسی نے نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. کہنے لگے اناس یتطہرون، اور بڑا پقیدہ بنتا ہے
हम तुझे अपनी बस्ती से निकाल देंगे। उसने कहा जाओ अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अल्लाह ने एक जायज तरीका, मेरी उम्मत की बेटियां मौजूद है, निकाह करो, निकाह करो। अल्लाह ताला ने क्या सदाएं दी, फजअलना आलियहा साफिलहा व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद। अल्लाह कहते हैं जब इस बगावत पर आ गए, आंखें बंद हो गई, अंधे हो गए, दिल के अंधे, आंखों के अंधे, बेहयाई और गुनाह ये यहीं से चले थे। मोहतरम भाइयों, आज हम रो रहे हैं, इस्लामी तंजीमें, उलमा, खैर खा इस्लाम के बड़े एहतजाज कर रहे हैं और अवाम को वो खबर नहीं है। बात चली कहां से थी? इसी नाखून रखने से चली थी, इसी कड़े पहनने से चली थी, इसी कद से चली थी, ऐसे बेटे को बाली पहनाने से चली थी, बेटी को ये पैंट शर्ट चढ़ाने से चली थी। माहौल हमने दिया था, फिर आगे ये कौमें बड़ी, नस्लें बड़ी, तो रंग तो वही थे, हमारे अंदर से निकल कर ये वज़रा मुशर्रा बने थे। ये हमने अपनी आंखों से बेहयाई जब बंदा देखता रहता है तो फिर याद रखे बेहयाई को देखकर घरों में भी फिर इंसान को गैरत नहीं आती, क्योंकि वो रच बच जाती है। ये वही गुनाह थे जिनको हम बाल के बराबर समझते रहे, आज उसकी ये शक्लें साबित हो रही है और ये अल्लाह ताला के अज़ाब की वईदें और उसकी शक्लें आज हमें नजर आ रही है। हम इस हद तक पहुंच गए, इस ढिठाई तक कि ये गुनाह आज कानूनी शक्ल ले रहे हैं और उसमें मफाद है, बहुत सारे मफाद हैं। दुनिया कुफ्र को खुश करना है और वो अपने एजेंडे पर यहूद और नसारा जो काम कर रहे हैं, आज उस एजेंडे पर काम करके हमारे इस्लाम ने हमें क्या दिया था? हमारे इस्लाम ने तो जो पहलू हमें दिए थे, अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सैयद अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी ने मुझे मना किया कि मैं अंगूठी अपने हाथ की फला फला उंगली में पहनूं, व अशारा इलल वुस्ता व सबाबा, और सैयदना अली ने दो उंगलियां ऐसे की, और मैं मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुझे मना किया कि मैं इस उंगली में अंगूठी पहनूं और इस उंगली में अंगूठी पहनूं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मना। क्या बात सिखाई अल्लाह के पैगंबर ने, क्या बात सिखाई? हम क्या क्या पहन लेते हैं। सैयदना अली बता क्या रहे, इस उंगली में और इस उंगली में नबी ने अंगूठी पहनने से मर्द को मना किया। ये उंगलियां औरतों के लिए आम है, जहां चाहे जहां ये जेवर पहन ले, लेकिन मर्द के लिए इस दरमियानी उंगली में और इस उंगली में अल्लाह के पैगंबर ने मना फरमाया। और आप क्या समझते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका हो, एक अमल हो, और उस अमल के हम कोई खिलाफ करें, हम आज शरीयत को उंडेल दे, पांव के नीचे रौंदे, कानून बनाए, बड़ी गाड़ियों पे सफर करें, हम आलीशान बंगलों में रहें, कौम के मालो दौलत पर पले और अल्लाह के दीन के खिलाफ बगावतें करें, शदीद खतरा रखे कि आसमान से कहीं खूंखरिया ले, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे पत्थर ना बरस जाए जिन पत्थरों पर तुम्हारा नाम ना लिखा। अल्लाह से डरना चाहिए। इस्लाम शिफा है, मुआशरों की बीमारियां इस्लाम से दूर होंगी, मईशतें इस्लाम से मजबूत होंगी। हम काफिरों की तरफ झांकते हैं और उनके दस्तरखानों के टुकड़े चुनने के लिए हम अल्लाह के दीन से गद्दारियां करते हैं। याद रखें, इस मुआशरे के क़याम का सबसे अजीम, इस मुआशरे की हयात, वो हयात इस्लाम के साथ, इस्लाम के साथ आप यारी जिन मुआशरों की होती है, वो मुआशरे खुशकरार मुआशरे होते हैं, अमन से लबरेज होते हैं, उनकी मुआशरतें बड़ी मजबूत होती हैं, उनके मुआशरों में निज़ाम जिंदगी बड़ा पुरसुकून होता है। अगर इससे गद्दारी की तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। याद रखिए, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुना रहे कौन? सैयदना अली रज़ियल्लाहु। नहीं पहनता, कितनी सी बात है, कितनी सी बात है। इस बात को लेकर हम मोहतरम भाइयों अपनी वज़ाक़त देखें। मर्द का लिबास आपने फरमाया टखने से नीचे हो वो जहन्नम में जाएगा। हम कहते नहीं, इसमें इज्जत क्या है, इसमें अजीम बेइज्जती है, टखना नंगा है, वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए कि वो मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। और जिसको कहा था अलमरातु औरतुन, औरत सारी की सारी सतर है, उसको ये कहा था। मर्द को क्या कहा था कि टखना तेरा नंगा होना चाहिए, तहमद पजामा, तेरी पैंट, ये शलवार, ये टखने से ऊपर होनी चाहिए। मा अस्फला मिनल काबैन वहुवा फिन्नार, वो जहन्नम में जलेगा। जो नीचे होता है हिस्सा, टखने से नीचे जहां तलवार जाएगी। लेकिन इसने क्या किया? इसने टखने को ढांप दिया और जिसको कहा था कि तू पूरा पर्दा है, उसने आधी पिंडली नंगी कर। हम इस्लाम को कहां ढूंढे, कहां तलाश करें? मर्दों में, औरतों में, अपनी बाजार में, अपने निकाह वलीमे में, अपनी खुशी गमी में, अपने लिबास वदाकता में, अपने कारोबार में,
कहां तलाश करें इस्लाम को? मुसलमानों कहां तलाश करें? हम बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, हम दिन रात अल्लाह ताला के इस्लाम की मुखालफत की तरफ जा रहे हैं, हर कदम मुखालफत में है, हर कदम मुखालफत में है, खुलेआम। कितनी ऐसी बातें हैं, कितनी ऐसी बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुला यशबहु बिन निसाई वल मराता तशबहु बिर रिजाल। अबू दाऊद की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने उस मर्द पर लानत की जो औरत के मुशाबहत इख्तियार करता है, और उस औरत पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई जो मर्द की मुशाबहत इख्तियार करती है। किसमें? अच्छाई के कामों में नहीं। मर्द नमाज पढ़ता है, यह कहती है मैं भी पढ़ूंगी, मर्द तहज्जुद पढ़ता है, यह कहती है मैं भी पढ़ूंगी, अच्छाई के कामों में नहीं। वज़ाक़ता में, बोल में, गुफ्तगू में, लिबास में, शक्ल शबाहत में, खलकत में तशाबुह लानत का सबब था। ऐसे बोलता है जैसे औरतें बोलती हैं, वो चप्पल पहनता है जो औरतों के साथ मखसूस है, वो लिबास पहनता है जो औरतों के साथ मखसूस है। अब हमारे माहौल में आप देख लें, नौजवानों के कानों में बालियां पहनी, पोनियां लगाई हुई, लिबास चेंज है, और फिर उसके साथ साथ अब ये जो कानून है, इस कानून में तो मामला बहुत आगे निकल गया है। ये तशाबुह तो चल रही थी, मुशाबहत, लेकिन उसके साथ साथ अब ये कानून जो हम जिन्स परस्ती को मुकम्मल एक सहूलत फराम कर रहा है ताकि ये सिलसिला इस मुआशरे में आम हो जाए, ये भी उसी जिमन में आता है। आपने फरमाया उस मुखन्नस के बारे में जो घर में था, हालांकि वो खलकत में कमजोर था। ये जो खलकत में कमजोर है वो इस हिस्से में नहीं आते, इसलिए कि उनके अंदर अगर मर्दानगी किस कामिल मर्द की सलाहियत नहीं, वो जैसा लिबास चाहे पहन ले, कामिल औरत की सलाहियत नहीं, जैसा लिबास चाहे पहन ले, वो खलकत में कमजोर है, नाकिस है, वो इससे खारिज है। एक कामिल मर्द है और एक कामिल औरत है, ये तस्वीर एक दूसरे की करती है, ये लानत के मुस्तहिक है। इब्न हजर ने इस पर बहुत लंबा लिखा है। घर में वो बैठा हुआ है जो खलकत में कमजोर है, गौर करें जरा बात, वो बैठा हुआ है और औरतों के मसाइल मसले पर बोल रहा है, बारीक बातों पर बोल रहा है, औरतें की बारीक बातें जो ख्वाहिशात को भड़काने वाली है, उस पर वो बोल रहा है। कौन? वो शख्स जो खलकत में कमजोर है, खुनसा है, घरों में भी आता है, औरतें उससे पर्दा भी नहीं करती, लेकिन घर में बात जो कर रहा था वो बात ऐसी थी जो बड़ी तदकीक वाली थी, बड़ी गहराई वाली थी, शहवात को भड़काने वाली थी। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखरिजूहुम मिन बुयूतिकुम, ऐ मदीने में मेरे मानने वालों, आज के बाद ये लोग घरों में दाखिल ना, इनको घरों में नहीं आने देना, इसलिए कि इनकी गुफ्तगू ऐसी है जिससे औरतों के ज़हनों में या मर्दों के ज़हनों में कोई खराबी पैदा हो सकती है। क्यों? हमारा इस्लाम, याद रखें, हमारा इस्लाम जहां बदकारी से मना करता है और बदकारी के जितने असबाब हैं उससे मना करता है, मना करता ही असबाब से है। बदनजरी है, निगाह को गलत चीजें दिखाना जो इंसान को बदकारी की तरफ ले जाए, हमारा इस्लाम उसके रास्ते रोकता है, लेकिन हमारा इस्लाम बदकारी के तज़किरे से भी मना करता है। कितना पाक दीन है। क्यों? जब आप पाक दामन लोगों के सामने बदकारी की, किसी की बदकारी का तज़किरा करेंगे तो उस बदकारी का कोई तसव्वुर उस पाक दामन के ज़हन में जाएगा, हो सकता है वो पगड़ी से हट जाए। इस्लाम कहता है बदकारी का तज़किरा भी ना कर। तज़किरा करने के लिए शरात लगा दिए, क्या 4 गवाह तेरे पास हैं तो फिर तज़किरा कर किसी कादी के पास जाकर कि इसको मैंने बदकारी में मुब्तला देखा है, अपनी आंखों से देखा है, 4 गवाह नहीं है, फिर भी उस बदकारी का तज़किरा ना कर। तज़किरा करेगा, 4 गवाह नहीं होंगे और कोई करीने की शहादत भी मौजूद ना होगी, तो इस्लाम कहता है इसको पकड़ के 80 कोड़े लगाओ, इसको 80 कोड़े लगाओ। क्यों तज़किरा किया? कितना साफ माहौल देता था हमारा इस्लाम। हमने उसको बड़ी बारीकियों के साथ मोहतरम भाइयों खराब किया है। कहां से चलाया है? लिबास में तब्दीलियां, गले में घुंघरू, पाँव में घुंघरू, नाखनों का बढ़ाना, शार्ट शर्ट, पैंट शर्ट, शार्ट लिबास, इख्तिलात निजाम। हमने ऐसा ऐसा इसको ऐसा रिवाज दिया कि आज हम कहां आके रुके। इस्लाम इन सारी चीजों को मना करता था, रोकता था। इसलिए मोहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपने मुआशरे को, घर के माहौल को, अपने तालीमी इदारों को इन सारी फहाशियों से, उरियानियों से पाक रखें।
पाकीज़ा माहौल अपने घरों में बनाएं और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं अल्लाह ताला हमारे इन हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए जो इस तरह के कानून बनाकर अल्लाह के अज़ाब को दावतें दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस्लाम को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए, फहाशी और उरियानियों से हम सबको महफूज फरमाए।